बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास क्या हाल है? ठीक है आप लोग? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहला आपके पास इसमें क्वेश्चन है एमसीक्यू, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। तो जब आप किसी स्टोन को, पत्थर को किक करेंगे तो आपने एक्शन लगाया और उसके रिएक्शन की वजह से आपको तकलीफ पहुंचेगी। तो रिएक्शन इज द राइट ऑप्शन विच इज डी। An object will continue its motion with constant acceleration until the resultant force on it is zero. B option. Number third, which of the following is a non-contact force? So electrostatic force is a non-contact force. So C is the right option. 3.4 है, a ball with the initial momentum P hits a solid wall and bounce back with the same velocity its momentum P prime after collision will be. तो पहले भी उसकी स्पीड वही थी, बाद में भी वही है, तो मोमेंटम भी दोनों इक्वल होंगे, तो P इक्वल्स टू P प्राइम, बट माइनस साइन आ जाएगा फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन. A particle of mass m moving with velocity v collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the particle after collision, so that will become zero. Conservation of linear momentum is equal to Newton's third law of motion. Number 7 है, an object with a mass of 5 kg. mass आ गया, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स और वेलोसिटी उसकी बाद वाली जो गिवन है वो 2 मीटर पर सेकेंड है. फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्टेंस. चैप्टर की वीडियोस देखकर आप अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा. और कमेंट में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है. तो एक आपके लिए है छोटी सी असाइनमेंट. नंबर 8, a large force acts on an object for a very short interval of time. In this case it is easy to determine. So product of force and time, which is called impulse. C option. Number 9 था है जी, a lubricant is usually introduced between two surfaces to decrease friction. The lubricant क्या करता है? प्रिवेंट, रोकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसिस, तो इसलिए फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास कम हो जाती है. अब हम पेज नंबर 77 पर चल के इसके क्वेश्चन देखते हैं. तो पेज नंबर 77 पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स. तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी पीछे भी मैंने किसी वीडियो में आपके साथ ये जिक्र किया था. 5 एग्जांपल्स इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. तो फ्रिक्शन, ड्रैग, थ्रस्ट, एयर रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फोर्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस. हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी? द ऑब्जेक्ट will move with constant velocity indefinitely or forever. नंबर 4 है, इम्पल्स को डिफाइन करें. तो मैंने आपको भी बताया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, और यू कैन से दैट व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स. Why has not Newton's first law have been proved on Earth? Because friction and resistance are always present on Earth. So Newton's first law has not been proved on Earth. Number 6, 7, sitting in the car of which suddenly accelerate from rest, you are pushed back into the seat. Why? So it is due to inertia, as our body resists the change in motion and tends to remain at rest. Number 7, the force expressed in Newton's second law is a net force. Why is it so? So because it is the sum of all the forces acting on it according to Newton's law, F equals to ma. Number 8 है, how can you show that rolling friction is lesser than sliding friction? So because rolling object have one point of contact between wheel and surface, this is the reason rolling friction is less than sliding friction. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? द हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग through a fluid, then it is called terminal velocity. And an astronaut walking in space wants to return to his spaceship by firing hand rocket. In what direction does he fires the rocket? So he will fire the rocket in opposite direction to the spaceship. अगर स्पेसशिप मेरे पीछे है तो मैं इस डायरेक्शन में फायर करूंगा, तो वो एक्शन और रिएक्शन की वजह से मैं पीछे की तरफ मूव करूंगा. इसके बाद बच्चों आ जाएंगे हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसमें आप लोगों को मैं गिवन डाटा आपको बताता हूँ, आप सॉल्व करेंगे. मैथ्स M1 गिवन है और V1 गिवन है, और इसी तरह M2 भी गिवन है और V2 आपने निकालना है.
तो पहले आप m1v1 वाला मोमेंटम निकाल लें, वो 0 है, और बाद वाला जो है वो आपके पास m1v1 और प्लस m2v2 हो जाएगा, और इस तरह से आप v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Inflatable airbags are installed in the vehicle as safety equipment in terms of momentum. What is the advantage of airbags over seatbelt? So airbags reduces the risk of injury in accidents because they increases the time taken by human inside to come to zero, momentum, and decrease the force that act on them. When a cricket ball hits high, a fielder tries to catch it. While holding the ball, he or she draws hands backward. Why? So the fielder pulls the hand back to reduce the ball's impact and prevent injury. पीछे की तरफ जैसे कैच करते हैं तो हाथों को पीछे की तरफ करते हैं, इम्पैक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ेगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। When someone jumps from a small boat onto the river bank, why does the jumper often fall into the water? Explain. So the boat moves backward as the person jumps forward, making them lose balance and fall into the water. Number 5 है, imagine that if friction vanishes suddenly from everything, then what could be the scenario of daily life activities? We cannot walk or run, bikes or etc. cannot start or stop. तो ये एक नुकसान हो जाएगा। तो ये थे आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन और उससे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस किया। लास्ट जितनी भी एक्सरसाइज की वीडियोस आप देखेंगे, मैं हर वीडियो के लास्ट पर आपसे यही बात कहूंगा, चैप्टर को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आप चैप्टर आपको आता है, आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको एक एक पॉइंट आता है, मैं कहता हूँ ये आपके लिए बात ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। तो चैप्टर को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। जब चैप्टर आपको समझ में आ गया तो ये आप खुद ही कर लेंगे। क्लियर है जी? तो अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।